Hello students, once again welcome to this lecture of vector for MSTCT, and in this lecture we are going to discuss the next type of product of vector, that is the vector product, which is also called as cross product. In the last some lectures we have discussed scalar product, that is the dot product and its properties, and also we have solved some important problems on the scalar product. Now these are the three continuous lectures in which this is first lecture of क्रॉस प्रोडक्ट. इसमें हम सभी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट two lectures we will solve the important problems for MSTCT on the cross product, that is the vector product. So let us start to define the cross product yani vector product. So as the name suggests, this is one type of product of two vectors and this is purely a vector quantity. जैसे कि हमने पहले देखा था स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर है, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है. तो वेक्टर किस तरह से तैयार होता है, हाउ अ क्रॉस प्रोडक्ट इज जनरेटेड. सो सी द डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. सी स्टूडेंट्स, दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर है तो उस पर भी आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो हियर आर माय टू वेक्टर्स इन अ प्लेन. एक प्लेन है, इसमें मेरे दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन अ प्लेन. इफ नाउ सी द डेफिनेशन, if I rotate the vector A through an angle theta, अगर मैं ए वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट करता हूं अप टू द वेक्टर बी, थीटा एंगल से वेक्टर ए रोटेट होता है और वेक्टर बी के पास जाता है. सो इफ द वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा अप टू द वेक्टर बी, then a vector perpendicular to this plane is generated. A vector perpendicular to the plane of vector A and vector B is generated, and this vector is called as A cross B, and this is the cross product, that is the vector product of vector A and vector B. अब ये वेक्टर A cross B कैसे होता है? This vector A cross B has magnitude AB sin theta. इस वेक्टर A cross B का मैग्नीट्यूड होता है AB sin theta, and unit vector in the direction of A cross B is n cap. So here is the vector A cross B, which is given by AB sin theta into n cap. So here vector A, vector B and vector A cross B forms a right handed system. right handed screw की तरह ये काम करता है. See here, if this is a right handed screw, if this is a right handed screw, अगर एक स्क्रू है, अगर ये स्क्रू के ऊपर मैं कोई भी एक दो पॉइंट ले लेता हूँ, let these are the 2 points. If I rotate this screw by right hand and if this point is, let this is the vector A, this is the vector B, अगर मैं इसको ऐसा रोटेट करता हूँ, so A, this is the vector B and angle A is rotated through an angle theta up to the vector B, then the rotation of this screw are going upwards, so the direction of the screw is upwards, so this vector is called A cross B. And unit vector in this direction, upward direction, is n cap. इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है n cap, and magnitude of this vector is AB sin theta. So magnitude into unit vector becomes the vector. So A cross B is given by AB sin theta into n cap. So this is the vector A cross B, and here A vector, B vector and A cross B vector forms a right-handed system. ऐसा हम कहते हैं. So A cross B is perpendicular to the plane of, A cross B is perpendicular to the plane of
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए क्रॉस बी, ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होता है और ए क्रॉस बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होता है, और ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ऑल द वेक्टर्स विच लाइज इन दिस प्लेन। ए और बी वेक्टर के प्लेन में जितने भी सारे वेक्टर होंगे उन सभी वेक्टर्स को ए क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है, एंड दिस इज द वेक्टर ए क्रॉस बी विच इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। सो देयरफॉर इट्स मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए बी इंटू साइन थीटा, ए बी इंटू साइन थीटा। जैसे डॉट प्रोडक्ट हमने देखा था, डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, तो दैट ए डॉट बी इज गिवन बाय ए बी कॉस थीटा एंड ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज गिवन बाय whose magnitude is a b sin theta, and this a cross b is a b sin theta into n cap. Now so this is the definition of the cross product. अब सेकंड प्रॉपर्टीज में हम जा रहे हैं, a cross b is not equal to b cross c. So this property is also very important. So see students how a cross b is not equal to b cross c. तो a cross b किस तरह से तैयार होता है, जब a वेक्टर बी वेक्टर तक रोटेट होता है थ्रू द एंगल थीटा, देन ए क्रॉस बी वेक्टर इज जनरेटेड। नाउ इफ आई वांट द वेक्टर बी क्रॉस ए, तो अब क्या होगा, बी वेक्टर ए वेक्टर तक रोटेट होगा थ्रू एंगल ए, तो ए क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर जनरेट होगा एंड दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज बी क्रॉस ए। सो हियर ए क्रॉस बी फॉर्म्स अ राइट हैंडेड सिस्टम। यहाँ पे बी क्रॉस ए विल फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। सो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज अपोजिट, देयरफॉर वी से दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। So A cross B and B cross A are in opposite direction and angle between A cross B and B cross A is 180 degree, that is pi radian. So ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना क्या है, एंगल बिटवीन A cross B and B cross A is 180 डिग्री and A cross B is not equal to B cross A. तो A cross B किसके बराबर होगा, A cross B अगर B cross A के इक्वल नहीं है तो A cross B can be written as minus B cross A. A cross B can be written as minus B cross A. तो इस प्रॉपर्टी का हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय काफ़ी यूज हो सकता है। A cross B को हम माइनस B cross A लिख सकते हैं या माइनस B cross A को हम A cross B लिख सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, ये तो मैंने पहले ही बोला है, बोथ वेक्टर्स are opposite direction but their magnitude is same. तो A क्रॉस B का और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। दिस फॉर्मूला गिव्स द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. सो हियर मॉड ऑफ A क्रॉस B इज ए बी साइन थीटा। सो देयरफॉर यहीं से फॉर्मूला तैयार होता है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी, बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. सो दिस इज द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4. नेक्स्ट इज ए क्रॉस ए इक्वल टू 0. सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है. सो ए क्रॉस बी इक्वल टू, बाय बेसिक डेफिनेशन, ए क्रॉस बी है मेरा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप. एन कैप फिर से देखिए, एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. तो अगर मुझे ए क्रॉस ए लिखने का है तो ए बनेगा ए इंटू साइन ऑफ, अब दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों का वेक्टर का एंगल होगा 0 इंटू एन कैप. सो साइन 0 बनेगा 0 इंटू यूनिट वेक्टर विल बी अ
zero vector, so A cross A equal to zero vector, P cross B is a zero vector, C cross C is a zero vector. सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होता है. दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5. एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज जीरो वेक्टर. तो इसके लिए यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस देखते हैं. सो यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसकी प्रॉपर्टी हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखी थी. आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1. आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होता है 1 होता है. आई डॉट जे, जे डॉट आई, के डॉट आई 0 होता है. तो उस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है. सो यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स जेड एक्सिस. दिस इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई, दिस इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस जे, दिस इज यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग जेड एक्सिस. ओके, सो आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस. तो आई क्रॉस आई क्या होगा. तो ये मेरे पास बेसिक डेफिनेशन है. ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप. सो आई क्रॉस आई इक्वल टू ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. सो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई इज 1. बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. सो अगेन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 इंटू साइन ऑफ सेम वेक्टर का एंगल कितना होता है 0. तो थीटा के जगह पे मैं 0 रखूंगा इंटू यूनिट वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर कोई भी ले लो एन कैप. तो साइन 0 इज 0, ये बनेगा 0. तो यही से पता चलता है कि सेम वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है. तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होगी 0 होगी. अब आई क्रॉस जे क्या होगा. सो सियर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1. एंगल बिटवीन वेक्टर आई एंड जे, एंगल बिटवीन वेक्टर आई एंड जे कितना है 90 degree, because these are the unit vectors along x axis and y axis, and x axis perpendicular to y axis. Therefore angle between I and j is 90 degree. Therefore it is sine of 90 degree into unit vector perpendicular to both I and j. यहाँ पे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a and b. ये यूनिट वेक्टर a और b को परपेंडिकुलर होता है. उसी तरह से I और j को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या है k वेक्टर. So it is k vector. So sin 90 is 1, 1 into 1 is 1, 1 into k vector is k vector. तो इस तरह से I क्रॉस j कितना होता है कि, तो इसको साइक्लिकली हम ऐसा ध्यान में रख सकते हैं. दिस इज I वेक्टर, दिस इज j वेक्टर, दिस इज k वेक्टर. तो I क्रॉस j इज k, j क्रॉस k इज I, k क्रॉस I इज j. लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं. तो हियर I क्रॉस j इज k, j क्रॉस k, j cross k is I, right, and k cross I, k cross I क्या होगा j. तो a cross b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है. तो I क्रॉस j अगर k है तो मेरा j क्रॉस k, j क्रॉस k कितना, j क्रॉस I क्या मिलेगा माइनस k. इसका उल्टा करो यानी k क्रॉस j करो. तो k क्रॉस j क्या होगा माइनस I. k क्रॉस I j है तो I क्रॉस k क्या होगा, I क्रॉस k क्या होगा माइनस j. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट. सो दिस प्रॉपर्टी नंबर 6 and 7 is also very important. So keep in mind, very very important. सेम है तो 0. I क्रॉस j k, j क्रॉस k I, k क्रॉस I j, j क्रॉस I k, j क्रॉस I माइनस k, k क्रॉस j माइनस I क्रॉस k माइनस j होगा. सो ऑल दिस अबाउट यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. एंड नाउ नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू a एंड b. a और b को कितने परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं 2 होते हैं. एक प्लस साइन से मिलता है, एक माइनस साइन से मिलता है. वो भी डेफिनेशन में ही छिपा है. So this is unit vector perpendicular to A and B. So this unit vector n cap is given by A cross B upon में क्या आएगा AB sin थीटा आएगा. So this is A cross B और AB sin थीटा क्या है, AB sin थीटा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ A cross B. So this is unit vector perpendicular to A and B. लेकिन A cross B को, A और B को 2 यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी.
तो इसलिए एक वेक्टर प्लस साइन से मिलेगा, एक वेक्टर माइनस साइन से मिलेगा. So this is the formula to find the unit vectors perpendicular to the plane of A and B. One is A cross B upon mod of A cross B, and second is minus A cross B upon mod of A cross B, where mod of A cross B is equal to what? AB sin theta, that is the magnitude of vector A cross B. So this is the point number 8, that is the unit vectors along unit vector perpendicular to A cross B. Next is A cross B in terms of components. This point is very important to calculate the cross product in terms of components. जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था, ए डॉट बी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. अगर अपने पास वेक्टर ए और बी दिए हैं तो डॉट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. तो क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला आप देखिए, उसके बगैर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे. सो हियर आई हैव दीज टू वेक्टर्स. इफ मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दिस वेक्टर ए इज a1i प्लस b1j प्लस c1k. दूसरा वेक्टर मेरे पास b है a2i प्लस b2j प्लस c2k. तो मुझे लिखने का है वेक्टर a क्रॉस b, देन वेक्टर a क्रॉस b. अब इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट में लेके अगर सॉल्व करता हूँ तो a1 a2 i क्रॉस i 0 हो जाएगा, फिर a1 b2 i क्रॉस j k हो जाएगा. तो इस तरह से हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी. तो a क्रॉस b को इन शॉर्ट इस तरह से लिखा जाता है. पहले रो में लिखने का है ij k, फर्स्ट रो में लिखने का है ij k, सेकंड रो में लिखने के हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a. कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a क्या है, a1 b1 c1. थर्ड रो में लिखने के हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर b. तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर b क्या है, a2 b2 c2. इसको सॉल्व करने के बाद समथिंग इंटू i प्लस समथिंग इंटू j प्लस समथिंग इंटू k. सो दिस विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b. तो इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आना चाहिए. बाय यूजिंग सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट यू कैन फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट, एंड दिस इज द cross product in terms of components a1 b1 c1 and a2 b2 c2. So this was the property number 9. Next is important, this is also important, Lagrange's identity. So this gives the relation between cross product and dot product. This gives the relation between cross product and dot product. तो इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी यूज होता है. तो इस फॉर्मूले को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, Lagrange's आइडेंटिटी किस तरह से तैयार होती है. सो यहाँ पे दिया है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर. तो मुझे मालूम है ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी इंटू साइन थीटा. तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो दिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए हो गया ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज ए बी कॉस थीटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा, where a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b, theta is the angle between a and b. तो a b cos थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ a डॉट b से. तो a बनेगा a डॉट b होल स्क्वायर. सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है मॉड ऑफ a क्रॉस b होल स्क्वायर. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज व्हाट, Lagrange's आइडेंटिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर. सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट बी डॉट बी डॉट. तो ये इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को ए डॉट ए स्क्वायर बी डॉट बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व कीजिए ए डॉट बी का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू दिस. सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज Lagrange's आइडेंटिटी. अब ये चार फॉर्मूले देखिए 11 12 13 14 किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होती है.
क्रॉस प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इन दो फार्मूले में बताऊंगा। अगर यहाँ पे यम स्केलर है तो ये पे देखिए यम स्केलर है, तो मैं इसको यम इंटू ए क्रॉस बी इक्वल टू एम ए क्रॉस बी, यानी स्केलर से मैं ए वेक्टर को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बी वेक्टर को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या मुझे उसे ब्रैकेट के बाहर भी निकाल सकता हूँ। अगर दो स्केलर से यम और एन, तो यम ए इंटू एन बी, यम ए वेक्टर क्रॉस एन बी वेक्टर है, तो दोनों स्केलर्स बाहर निकाल के मैं ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ, या यहाँ पे यम ए है तो पहले मैं एन ए लिख सकता हूँ, यहाँ पे एन बी है तो बाद में मैं एम बी भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से 11, 12 प्रॉपर्टी है। 13 एंड 14 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13 एंड 14 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सही यूज किया तो ही प्रॉब्लम आपका राइटली सॉल्व होगा। तो देखिए ए क्रॉस बी, इसको देखिए ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी है, तो इसका सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करने का है। ए क्रॉस बी पहले ए तो ए क्रॉस बी ही लिखिए, प्लस साइन है तो प्लस, माइनस साइन है तो माइनस ए क्रॉस सी। ओके, अगर मेरे पास पहले बी प्लस सी है और उसका ए से क्रॉस प्रोडक्ट है, तो बी क्रॉस यही लिखने का है, ए क्रॉस बी नहीं लिखने का है। बी क्रॉस ई प्लस साइन बी क्रॉस ए प्लस साइन, अब आएगा सी क्रॉस सी। ओके, तो बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी नहीं लिखने का है, सी क्रॉस ए को ए क्रॉस सी नहीं लिखने का है। तो यहाँ से बी पहला है तो बी आएगा, बाद में सी आएगा। तो इस तरह से ये 13 एंड 14 बोथ प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन ही लेने का है। सो दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें हमें पैरेललोग्राम, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। तो तीनों फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों फार्मूले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए, अगर मेरे पास कोई पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसमें दो फार्मूले मैं आपको बताऊंगा कि अगर साइड्स दिए हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, और डायगोनल्स दिया है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट सी इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ए एंड बी, A vector and B vector represent the adjacent sides of the parallelogram, then area of parallelogram is given by mod of A cross B. Please note this formula। यहाँ पे मैंने पूरा फार्मूला नहीं लिखा है, तो आप इसको नोट कीजिए। अगर adjacent side A और B है तो area of parallelogram is mod of A cross B। अब अगर मेरे पास ऐसा पैरेललोग्राम है, अगर मुझे यहाँ पे इस पहले फार्मूले में क्या दिया था, adjacent sides, अब मुझे डायगोनल्स दिए हैं। अगर ये डायगोनल सी वेक्टर है और ये डायगोनल अगर डी वेक्टर है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया मुझे मिलेगा 1/2 mod ऑफ सी क्रॉस बी। यहाँ पे मिलेगा mod ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स, यहाँ पे 1/2 mod ऑफ सी क्रॉस बी इफ सी एंड डी आर डायगोनल। सो दीज टू इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूलेज। अब मुझे देखने का है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट का कैसा यूज होता है और फार्मूला क्या है। अगर मेरे पास ट्रायंगल ABC है, इफ दिस इज द ट्रायंगल ABC, अब BA और BC वेक्टर देखिए, BA और BC, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 1/2 mod ऑफ BA क्रॉस BC, BA क्रॉस BC। अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूं तो mod ऑफ 1/2 mod ऑफ AB क्रॉस EC, 1/2 mod ऑफ AB क्रॉस EC, या 1/2 mod ऑफ CB क्रॉस CA, CB या कोई भी वेक्टर पहले लीजिए, CB क्रॉस CA। तो इसमें से कौन सा भी फार्मूला यूज करेंगे, तो BA वेक्टर का और BC वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने का, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेने का, फिर उसको 2 से डिवाइड करने का, यू विल गेट द area of this triangle, and this formula it can be also written as if ABC are vertices of the triangle, if ABC are the vertices of the triangle with position vector ABC, this can be also written as 1/2 mod of A cross B plus B cross C plus C cross।
तो इसमें से कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. This also gives the area of triangle 1/2 mod of A cross B plus B cross C plus C cross C. So these are the formulas for area of triangle. And last one is area of quadrilateral. कैसा quadrilateral किसी भी टाइप का हो, quadrilateral किसी भी टाइप का हो A B C D, तो उसके डायगोनल्स देखिए AC और BD. ये AC वेक्टर है, BD वेक्टर. तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा 1/2 mod of AC cross BD. So this gives the area of quadrilateral. These are the formulas for area of triangle, area of parallelogram. अगर A और B एडजेसेंट साइड से तो mod of A cross B, और C और D अगर डायगोनल्स है तो 1/2 mod of C cross D. So this is all about what cross product, and these are the important properties of cross product, that is the vector product. And using this property we can solve all types of problems for MHT CET. So in the next lecture we will solve the next two lectures, we will solve 20 to 25 important problems for MHT CET of cross product, that is the vector product. So okay students, bye. Now we stop here.